جو پہلے مسجد بنی ہوئی تھی اس کو گرایا گیا۔ وہ غازی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جیسے ہی پتھر کوئی اڑتے نیچے سے اشرفی نکلی، مثلا اس دور میں جو اشرفیاں نکلی ان سے پھر مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ جی دوبارہ تھا۔ تو مجھے کسی اپنے فوجی بھائی نے بتایا تھا کہ یہ جو درخت اور یہ مسجد یہ دونوں ہماری محفل میں شامل ہیں۔ اچھا، تب میں نے اس کا آپ کی بات کا یقین کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس تاریخی مسجد میں پہنچ چکے ہیں جیسا کہ اپنے تھم نیل کے اندر پڑھا کہ 350 سال پہلے سے بھی اوپر بنتے ہیں کہ مغلیہ دور کی یہ مسجد ہے اور یہ اشرفیوں سے تعمیر کی گئی مسجد ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ استاد ماسٹر فیاض صاحب جو ہے موجود ہے۔ ماشاءاللہ تاریخ پہ بھی یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، تاریخ کا بھی ان کا بڑا مطالعہ ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں، یہ اس مسجد کے موجودہ متولی ہیں اور 27 سال سے متولی ہیں، اور اس سے پہلے کی بھی ان کے پاس کافی معلومات ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ تھے وہ یہاں آتے تھے یا کہیں ٹھہرتے تھے، تو کیونکہ جنگجو لوگ تھے ان کا سفر عموماً رہتا تھا، دلی سے نکلے افغانستان کی طرف گئے، یہ قافلے چلتے رہتے تھے، تو وہ عموماً پڑاؤ ایسی جگہ پہ کرتے تھے کہ جس جگہ پہ دشمن کو نشانہ بنانے میں آسانی ہو یا دشمن کو ان پہ حملہ کرنے میں مشکلات پیش ہیں۔ تو یہ سب سے بلند جگہ ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے وہ درخت بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس درخت کے نیچے قافلے آ کے آرام کیا کرتے تھے، اور آرام کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اور اس مسجد کے اندر انہوں نے اس مسجد کا قیام عمل میں لایا۔ تو مسجد صاحب سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم نے جہاں تک تاریخ کو کنگالا یا اس کو پڑھا یا جو ہمارا مطالعہ ہے، کیونکہ ہم تاریخ کی ہستیاں بناتے ہیں، اور اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اشرفیوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف افواہیں ہیں یا باتیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرا نام محمد فیاض ہے، میں محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب میں ریٹائر ہوں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے 41 سال سروس کی ہے، اس میں سے 25 سال سروس میں نے اسی سگر گاؤں میں کی، اس گاؤں میں 1900 جنوری 1997 میں مجھے یہ مسجد کی خدمت کا موقع ملا۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے سردار مہدی خان مرحوم، وہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بھائی اپنے سارے کسی اور کو دے دیں۔ میرا انتخاب ہوا، نماز نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں مسجد میں خدمت کر رہا ہوں اس کو بتانے سے، الحمدللہ۔ اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی تاریخی پوزیشن، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو مسجد کی یہ جو دیوار ہے مغرب والی، یہ جو ہمارے پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے، یہ مغرب والی جو دیوار ہے، اس کو پلستر میں نے کرایا ہے 2023 میں، 1 سال میں۔ اس کی اینٹیں چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی تھی اور اس کی بالکل پوزیشن ایسے لگتی جیسے شاہی قلعے کی دیوار ہے لاہور، بالکل اسی طرح۔ لیکن چونکہ اس کی اینٹیں خراب ہو رہی تھی، نمازی نے مجھے مجبور کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پلستر اس کی پوزیشن اصل رہنی چاہیے، لیکن نمازی نے مجھے مجبور کیا کہ یہ ساجی یہ نقصان ہو جائے گا، آپ اسے مرمت کرائیں۔ پھر میں نے اسے پلستر کرا دیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس کی تاریخی جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں سنگوالا میں گیا، اس بڑی مسجد میں جو مغلیہ خاندان کی مسجد مشہور ہے، اس مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے نا، ادھر گیا کسی کام سے، وہاں میں نے نماز پڑھی۔ اس کا جو محراب، اتنی بڑی مسجد اور محراب جو چھوٹا سا، یہ جو نظر اس کا یہ جو محراب ہے بالکل ہمارے محراب میں سے ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد بہت قدیم ہے اور پرانی مسجد ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ادھر ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ایسے بیٹھے تھے، تسبیح وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو ہمارے ادھر پیچھے ہمارے محلے کے بزرگ تھے سید مزور حسین شاہ، انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی تھے سید غازی شاہ صاحب مرحوم، وہ بولتے ہیں مزور شاہ صاحب کو، وہ جب 17-18 سال کے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں جوانی میں تھا تو اس مسجد کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی، جو پہلے مسجد بنی ہوئی تھی اس کو گرایا گیا۔ اس وقت متولی کون تھے؟ ہمارے ادھر قوم ہے دلال، اس کے کبھی ہیں فادر، ان کا نام ہے جاوید، وہ جاوید کے دادا تھے،
ऐसे ही शाह साहब ने बताया कि जावेद के दादा थे, वो इस मस्जिद के मुतवली थे। वो गाजी शाह साहब बताते हैं कि मैं इसका आईनी शायद हूँ कि जैसे ही पत्थर कोई उखाड़ते नीचे फेंकते, नीचे से अशरफी निकलती, अशरफी निकलती, हर पत्थर के नीचे, हर पत्थर के नीचे से एक अशरफी निकलती। और वो उन्होंने जब ज्यादा अशरफी निकली, उनकी जेब में भर गई, तो फिर उन्होंने चादर बिछा दी, ठीक है, और वो अशरफी उन्होंने चादर पे डाली। मसलन पहले उन्होंने समझा कि किसी पत्थर किसी की पत्थर उन्होंने की जेब में डाला, हाँ जी, ठीक है। एक बार जब खत्म हो गया, दूसरा जब शुरू हुआ, उसको जब निकाला, जो पत्थर निकालते नीचे से अशरफी, वो चादर भर गई। आप ये बता दें कि जब आपने तामीर करवाई, इससे पहले ये कितनी दफा तामीर हुई? इससे पहले जनाब हमने ये देखा है कि ये मस्जिद सिर्फ ये समझ लो कि 12 फुट थी। ये जो दरगान वाली जगह है ना, ये दरगान वाली, यहाँ एक दीवार थी, एक यहाँ दीवार थी, और वो बड़ा दरवाजा, बड़ा तारीखी दरवाजा है, पता नहीं कब का है। हमारे वालिदैन भी यही देखा है। अच्छा, आपके वालिदैन? मेरे वालिद साहब 1993 फौत हुए, 75 साल की उम्र। ठीक है। अब 2024 हो गया, तो उन्होंने उनकी यही दरवाजा थे। अच्छा, उन्होंने भी यही दरवाजा, ठीक है। यानी और इस दरवाजे पे एक नाम लिखा हुआ है, नूर मोहम्मद जी। वो ऐसे कहा जाता है कि वो सिंगवाले के कोई मिस्त्री, उन्होंने ये बनाया था। ये एक इधर दरवाजा लगा हुआ है, एक उधर सामने वो जो मस्जिद है, मस्जिद हसान जी, उसमें ये ऐसे ही दरवाजा। जी जी, मैंने देखा, आपने देखो। अच्छा मसद साहब, जो वो अशरफियों की आप बात कर रहे हैं, मसलन जिस बुजुर्ग ने आपको बताया है, उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई जो थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि हर पत्थर उठाते थे तो अशरफी निकलती थी। जी जी। तो ये जो आपने तामीर करवाई है जिस वक्त मस्जिद, और आप कह रहे थे कि वो ईंटें जो लगी हुई थी वो शाही किले की, तो वो तामीर जो थी वो पुरानी तामीर थी या? बिल्कुल वो पुरानी। उसको जो वो मिसाला लगा हुआ था ना जी, वो भी रेड कलर का था, वो सीमेंट वगैरह नहीं था, पता नहीं किस चीज का बना हुआ था वो, और बाहर साफ नजर आ रहा था वो। मस्जिद की दीवार के पास जो भी आदमी गुजरता वो उसे देखता कि ये पुरानी मस्जिद है। जी जी। लेकिन हमने मजबूरन उसकी। तो वो जो अशरफियों की आप बात कर रहे थे वो जरा कंप्लीट करें। आप वो बता रहे थे कि एक आदमी लेके भागा था। हाँ, एक आदमी लेके भागा था, नाम लेना मुनासिब नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, एक आदमी अशरफ को देख के ना उसे न रहा गया। वो बकौल वो शाह साहब ना, वो जब ये अशरफियां निकाल के वो चादर पे रख रहे, रास्ते में पड़ी हुई थी ना, रास्ते में। तो जैसे गुजरा उसे न रहा गया। अच्छा, ये वो यही दीवार थी? यही दीवार। अच्छा, ये दीवार थी, इसके पीछे। ठीक है। वो उसे न रहा गया, वो ऐसे मुट्ठी भर के भागा, लेकिन उससे मुतवली ने पीछे पकड़ लिया। गाओ भैया, अल्लाह की घर की चीज है, ये अमानत है हमारी। हाँ, ये हमने आपस में तकसीम नहीं करनी। मसलन उस दौर में जो अशरफियां निकली, उनसे फिर मस्जिद दोबारा तामीर की गई? जी जी, दोबारा था। 1757 में जंग प्लासी हुई, ठीक है, सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज, लेकिन वो पूरे मुल्क पे उस पर काबिज नहीं थे, काबिज नहीं थे। उसके बाद 1857 में जंग आजादी हुई, ठीक है। उस वक्त उन्होंने मुगलिया खानदान के बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून भेज दिया और पूरे मुल्क में काबिज हो गए। ये मामला सब उससे पहले। जी जी, ये बहुत पुरानी तामीर है। हाँ, क्योंकि मास्टर साहब बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। 1707 में गलबन वो खिचियों की मस्जिद और मुगलिया, और ये सारी गुजरगाह एक ही सारे। जो अशरफियों से जो मस्जिद तामीर दोबारा हुई वो आपने अपनी आंखों से देखी है। अंग्रेज दौर की शाही मस्जिद की किले की तरह वो ईंटें लगी है, तो फिर वो आपने निशानी क्यों खत्म कर? ये वो सीधा हो गई थी। अच्छा, वो मंजर आपने अंग्रेज दौर की तामीर देखी, बिल्कुल कोई उसमें शक नहीं। हाँ, देखिए, शक वाली बात नहीं है। तो ये आप, और ये भी आपको बात बता दें कि आप जो मकान बन रहे हैं हमारे, कोई 9 इंची का है दीवार वाला, कोई 6 इंची का है, ये जो गुलाब के बन रहे हैं। ये हमारी दीवार आप देखिए, ये 22 इंच, बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया कि इसका सिर्फ दीवारें रहने दी, बाकी सारा तब्दील कर। अच्छा, सारा छत तब्दील किया। अच्छा, इसकी तो इसका दीवार जो पहले था अंग्रेज दौर का, क्योंकि अंग्रेज दौर तो उस वक्त लकड़ी थी। अच्छा, वो आपने देखी है? हाँ, देखी है लकड़ी, तो लकड़ी हमारे पड़ी। जब अंग्रेज दौर आया, ये तकरीबन कितना अरसा पुराना जो दोबारा तामीर हुई, ये आपने देखी है? चलो, तामीर होते तो नहीं देखी, तामीर होती हुई उन बुजुर्गों ने बताया था कि इन अशरफियों से वो दोबारा। अच्छा, वो इतनी अशरफियां थी कि दोबारा वो सारी मस्जिद? जी बिल्कुल। देखो ना, ये कितनी ऊंची दीवार है, हर पत्थर के नीचे इसके कितने वार बने होंगे, हर पत्थर के नीचे अगर अशरफ निकले
फिर उसकी कीमत तो बहुत बनती है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो यानी कि बताते हैं बुजुर्ग कि वो जो दोबारा तामीर हुई अंग्रेज दौर के अंदर सारी अशरफियों ने वो सारा काम सारा कर काम दिया। हो गया, पूरी दीवार हमने वो की है, प्लस्तर की। अच्छा, आपके बताने का ये मकसद है कि ये जो दीवार है ये मुगलिया दौर ये की है, पुराने दौर की है, पुराने दौर पुराने की है, दौर। 350 साल पुराना जो मुगलिया पुराने दौर था। पुराने दौर। इसी- तो ये मेहराब भी ये मेरा भी पुराना, इसको भी नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा, मसलन ऊपर से ये टैलेंट है लेकिन इसको खेड़ा वगैरह वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसे नहीं। नहीं छेड़ा। जी अच्छा, शुभ है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आपने बताया तमीर में ना कि मस्जिद इसके पीछे ड्राफ्ट है, उसकी मैं कहानी आपको बताऊं। मुझे एक अपने सदर के एक फौजी भाई ने ये बात बताई है। ये फौज के अंदर कोई इनका मैप चलता है, नक्शा चलता है ना, जिस पर ये अपनी एक्सरसाइज करते हैं या अपने मुल्क में करते हैं, उसे मैपरीडिंग कहते हैं। वो कहता है कि ये मस्जिद और इसके पीछे दरख्त, ये दोनों उस फौज की मैप में मौजूद। अच्छा जी, ये दीवार नजर आ रही है, ये काफी मोटाई के अंदर है। हाँ जी, ये उसके साथ वाली बनी हुई है। अच्छा, तो पता ये नहीं भी कब की बनी है। अच्छा, हाँ जी, ये भी ऐसे उसी पुराने दौर की पुराने है। दौर की है। हाँ तो जी। ये ऊपर सिर्फ मकसद के मार्बल लगी हुई है और ये लेकिन है उसी अंदर पुराने- वही दीवार है। अच्छा, अंदर वो ही दीवार। हाँ जी। इससे नजारा देखें आप, सगर का जरा नजारा करें यहाँ पे। और ये जो एरिया है ये सारा पुराना सगर है। अच्छा, हाँ, नया सगर नहीं है ये। नया सगर रोड की तरफ है। ठीक है। ये हमारी रोड के जैसे हम उतरते हैं हमारी रोड से सगर की तरफ, वो पुराना, वो सब नया सगर है। ये पुराना सगर है, ये सब पुरानी आबादी। ये सब नीचे है और मस्जिद काफी बुलंदी पे है। ये पूरा टीला था ना, जी, जी। और ये सिर्फ इतनी जगह बाकी रह गई थी, बाकी है। सारा नीचे चला गया था। और अच्छा, हमें ये डर लग गया था कि कहीं हमारी ये मस्जिद की इमारत गिर न जाए, तब जाके ये हमें बनाया। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि पैसे भी लगाएं जी, और साथ कोई चीज वापस आ जाए। ठीक है। वो जो जिस दरख्त का जिक्र किया जा रहा है, वो कारी साहब ने जदा में बताया कि एक दरख्त था, वो दरख्त इस हवेली में था, और वो दरख्त बाद में शायद टूटा फूटा होगा, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन ये दरख्त हमने भी अपनी लड़कपन, बचपन, लड़कपन, जवानी, अब बुढ़ापे की हद तक आ गए हैं, जवानी तक ये था दरख्त, और उसकी शाखें इधर आई हुई। अच्छा, ऐसे शाखें हाँ, इधर ऐसे आ ऐसे रही यहाँ थी। दीवार थी, कच्ची दीवार से इधर आई हुई। मैं इस दरख्त को, आपने जो दरख्त का जिक्र किया, मैंने इस बात को तस्लीम इसलिए किया कि मुझे किसी अपने फौजी भाई ने बताया था कि ये जो दरख्त और ये मस्जिद, ये दोनों हमारी महफिल में शामिल है। अच्छा, तब मैंने इसका जो आपकी बात का यकीन किया। ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, तो तब मैंने ये यकीन कर लिया कि मसलन ये जो बात मैंने बराबर है। आपको बताई है वो ये बात बात है। जरूर उन्होंने भी तस्दीक की है की है, इसकी, बिल्कुल जवान है। की है। जी, और इंशाल्लाह हम जो है वो अगली वीडियोस के अंदर आपको वो पुराने कुएं दिखाएंगे। वो कहते हैं कि दिल्ली से घोड़ा चला था ना, और सगर सगर बोलता हुआ आ रहा था, इतना सगर मशहूर था उसका। वो दिल्ली का घोड़ा यहाँ पानी के लिए हाँ तरसता था। जी। हम इंशाल्लाह जल्दी वो पुरानी यहाँ कहते हैं 200 से ऊपर कुएं थे, कुएं थे, वहाँ पार्क भी होती थी, और इंशाल्लाह हम वो भी आपको दिखाएंगे। और अगली वीडियो के अंदर हम वो भी शख्सियात का जिक्र करेंगे जो 2 शहीद भाई थे, एक शहीद यहाँ हुआ और दूसरा वो झाड़ले के मकाम पे दफन।